A device, a device which can measure small current, minute current, or a device which can sense or detect current will be called as galvanometer. And we also discussed it is discovered by a scientist named D. Arseneval, and it works on permanent magnet moving coil mechanism. And we have got two types. One is suspended, another is pivoted type. So today we'll start with this construction of it. And when it comes to construction, we don't have much in the syllabus. So they are given in very simple manner. So if you see the diagram, obviously you're going to have a horseshoe magnet, and the end of the horseshoe magnet, it has got concave shape, right? Usually it will be plain, but here they have cut it into a concave shaped magnet so that we can place this system, right? And this system, it consists of iron core, and above the iron core we have got a rectangular coil, and this rectangular coil, obviously it is connected to a spiral spring, and the spring is connected to pointer. Means when current is passed through the coil, obviously this coil is in magnetic field. So what will happen when current is passed? This coil will, it will experience torque, and because of this torque, it will deflect. The coil will deflect. When the coil deflects, obviously this pointer also gives deflection. And on the basis of this deflection, obviously we are going to calibrate the value. So will we calibrate the value of current? Yeah, you will be calibrating the value of potential difference. It depends what you're going to measure, right? But to be very precise, actual construction is, obviously you're going to draw this diagram in exam, but actual one is, see, it is going to have a rectangular metal frame, number one. There is a rectangular metal frame. This is metal frame. Now you will take one wire, maybe copper wire, right? Now you will stretch this copper wire around this rectangular frame. So obviously, when you stretch this along rectangular frame, obviously it will become rectangular coil. It will become rectangular coil. This is how it is going to be. So this is inside you got rectangular metal frame. Above it, we have got a copper coil wounded on it, right? So it is rectangular metal frame. So it will become rectangular coil. Now, the upper part, obviously, it is connected to a rigid support by means of torsion head. Torsion head means obviously it will, the entire system can rotate without any friction. So this is going to be somewhat like this, right? So this can rotate. The system will be like this. The lower part can rotate. So there is no opposition from the upper part, right? So there is no friction. So we have got torsion head, and here you're going to have inlet of current. Obviously, current will come from here and it will move down. Then lower part, obviously, you're going to have a spring. It is called helical spring. Helical spring, because it is in the form of helix. And here the current will go. So this is inlet of current and this is outlet of current. And exactly at the center, you're going to have metal frame, sorry, not metal frame, iron core, where the axis of the iron core and the axis of the coil, it is going to be the same. So the entire system will have same axis. They are coaxial, right? So this will be the core. And the entire system, it is in very strong magnetic field by means of horseshoe magnet. That is north. And this horseshoe magnet, it has got concave pole pieces. Concave pole pieces. This is the actual structure, right? Now what we are going to do, if I place a mirror here, there is a plane mirror attached. Now when the current is passed, the coil will experience torque, and because of this will deflect. So when this deflects, obviously mirror also deflects along with, right?
mirror will also get deflected, and above, in front of the mirror, you will place one lamp, and below the lamp, you will place one scale. Now, what happens? The lamp will definitely, send light to the mirror, and mirror ka image, it will fall on the scale. So initially, scale will be set when there is no current. The scale will be set in such a manner, the image produced by the mirror on the scale, it will be at 0. I repeat, the image produced by the mirror on the scale, it will be at 0. I mean, the scale is adjusted in that way. Now you assume that when current, if you pass current, the system, I mean, the coil will get deflected. So mirror also gets deflected. So don't you think the image on the scale moves along with the scale? Yes or no? Yes. सर मिरर का नहीं सकते रिपीट करें बच्चे देखो इधर, सपोज इधर मिरर है, राइट? मिरर का सामने मैंने लैंप रख दिया, लैंप मतलब बल्ब आप समझ लो, या लाइट हम लोग देख सकते हैं, एंड बिलो द लाइट यू हैव प्लेस्ड ए स्केल, ऐसा स्केल रखा है। तो अभी क्या होगा, इसका लाइट इस पे गिरेगा, देन इसका इमेज क्या होगा, जब करंट नहीं है तो 0 पे एडजस्ट किया हम लोग, स्केल का 0 पे। यस सर 0 सर अभी क्या होगा, जब हम लोग ने इसमें कॉइल में करंट किया तो क्या मिरर क्या होगा, डिफ्लेक्ट हुआ, तो इमेज भी इस पे डिफ्लेक्ट करेगा ना। यस सर यस समझा? तो हम लोग डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे यूजिंग लैम्प स्केल अरेंजमेंट, लैम्प स्केल अरेंजमेंट। बच्चे ये सिलेबस में नहीं है, बट आपको खाली बेसिक इसके लिए बता रहा हूं। बच्चे इज इट क्लियर? यस सर अभी कॉइल इधर आके रुका, मैंने करंट बंद किया, तो करंट बंद किया तो क्या होगा बच्चा, ये जो स्प्रिंग है ना, तो जब कॉइल घूमता है तो ये ट्विस्ट होता है, मानते हो ये बात? यस सर अभी ये स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ तो ऑब्वियसली उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। आपने पढ़ा होगा रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग को मैंने खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स बनता है, उसको ट्विस्ट किया तो रिस्टोरिंग टॉर्क बनता है, राइट? सो जैसे ही मैंने करंट को बंद किया तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, जो स्प्रिंग में ये कॉइल को बैक, इट विल ब्रिंग बैक, कॉइल बैक टू द पोजीशन, इट विल ब्रिंग द कॉइल बैक टू द पोजीशन। डिड यू गेट दैट? यस सर यस हाँ बच्चे, ये जो गैल्वेनोमीटर है ऑब्वियसली ये सस्पेंडेड टाइप है। कौन सा टाइप है बच्चा? सस्पेंडेड हाँ, तो अभी पाइवेटेड में टाइप में क्या होगा, ये मिरर को निकाल देंगे, उधर एक स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे ऐसा, एंड इसको कनेक्ट करेंगे पॉइंटर, एंड पॉइंटर को इधर कैलिब्रेशन करेंगे, कैलिब्रेशन समझता है ना आपको? यस एंड नीचे भी हम लोग एक स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे, जो अभी इधर तो नहीं दिख रहा है, बट वी हैव गॉट 2 स्पाइरल स्प्रिंग। अभी क्या होगा बच्चे देखो, जैसे ही तुम्हारा करंट पास होगा, डोंट यू थिंक ये स्प्रिंग ट्विस्ट होके ये पॉइंटर मूव होगा, बराबर है? यस ये घूमता है ना बच्चा, तो ऑब्वियसली ये ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंटर मूव होगा, राइट? यस तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे करंट 0 किया, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग द सिस्टम विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो है ऑब्वियसली कौन सा टाइप है बच्चा? पाइवेटेड है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर यूज कर रहे हैं मेजरिंग के लिए। सर पाइवोटेड का फिक्स एक्सप्लेन करें बच्चा पाइवेटेड मतलब पॉइंटर होगा, पॉइंटर राइट? तो ये पॉइंटर हम लोग को, मतलब इसको हम लोग पाइवेट्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज पाइवेट्स। ये दोनों पाइवेट्स है, राइट? तो उसको हम लोग पॉइंटर कनेक्ट करके कैलिब्रेशन करते हैं, रीडिंग निकालते हैं, इसके लिए पाइवेटेड टाइप है। मिरर यूज करते हैं तो सस्पेंडेड है, ये पाइवेट्स यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो पाइवेटेड टाइप होगा। यस सर यस हाँ बच्चा, ये एक्चुअल डायग्राम है, बट आपका बुक में तो यही दिया है, तो इसको ही फॉलो करेंगे, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। इज इट ओके? यस सर यस सर ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जब हम लोग ये सिस्टम में करंट पास करेंगे तो ऑब्वियसली कॉइल क्या होगा बच्चा, होगा डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज ऑफ टॉर्क, क्योंकि जब हम लोग मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो घूमता है। क्यों घूमता है बच्चा? टॉर्क का वजह से। अभी आपको इधर करंट कैरिंग कॉइल घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपको ये भी पता है कि करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, है ना? Yes. करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक व्हाट? मैग्नेट। सो अल्टीमेटली उसको मूव करना पड़ेगा, बराबर है ना? सर रिपीट करो ना एक बार। बच्चा, मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल इक्विवेलेंट है।
तो मैग्नेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तो रोटेट होता है, तो करंट Yes. कैरिंग कॉइल भी रोटेट होगा ना, Yes. Yes. और ये रोटेट हुआ तो ये पॉइंटर भी मूव होगा Deflect ऑन होगा। एंगुलर स्केल, तो आपको Yes. रीडिंग मिल जाएगा उसमें। इज इट ओके, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो इधर, व्हेन करंट इज पास्ड ड्यू टू टॉर्क the coil gets deflected coil gets deflected. The deflection is directly proportional to current passing through the coil. मतलब जितना करंट उतना डिफ्लेक्शन होगा, जितना कम करंट उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, पासिंग थ्रू द कॉइल। तो मैं इधर अंदर ऑब्वियसली ऐसा लिखता हूं कि I is directly proportional to theta. I is directly proportional to theta, right? तो अभी थीटा को कैसा मेजर करें? The deflection can be measured. Deflection can be measured with the help of pointer. तो ऑब्वियसली हम लोग पॉइंटर कनेक्ट करेंगे। So with the help of pointer attached to the coil, right? Then the position of pointer on angular scale, the position of course this position I'm talking about, this position I'm talking about, right? Definitely the position of the pointer on the scale provides what it provides, but provides the value of current बच्चे इधर लिख रहा हूं, करंट passing through coil or potential difference applied across the coil. मतलब ultimately you can use it to measure current as well as potential difference. So you can use it as ammeter or you can use it as voltmeter. बच्चे clear up to this much? इधर तक समझा? बच्चे इधर तक समझा? कैसा आएगा? Yes. Yes. क्या बोल रहे बच्चा? सर एमीटर कैसा आएगा? वो तो आगे है ना बच्चे, इसका एप्लीकेशन है, वो डिस्कस करेंगे। Sir. एमीटर अभी बच्चा I is directly proportional to theta है, राइट? तो मेजर तो स्मॉल करंट कर रहा है, बट तो करंट तो मेजर कर रहा है ना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं हाई करंट मेजर करने के लिए, मतलब दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, वो आगे देखेंगे हम लोग, राइट? हाँ, जीरो के रीडिंग में, जीरो के लेफ्ट साइड में भी रीडिंग है, राइट साइड में भी रीडिंग है, तो Of कभी course जाएगा reading. ये? अभी Left करंट side में कभी जाएगा? ऊपर से आता है ना, ऊपर से तो एक साइड में डिफ्लेक्शन होगा, नीचे से आता है तो दूसरा साइड, Yes, sir. बराबर है ना? क्योंकि हमको पता नहीं ना कैसा कनेक्ट करने वाले हम लोग, Yes, yes. राइट? तो मतलब राइट, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन में राइट आया तो नेक्स्ट उल्टा कनेक्ट किया तो डेफिनेटली लेफ्ट आएगा डिफ्लेक्शन। सर कॉइल Yes. मूव क्यों करेगा इसमें पाइवोटेड टाइप में? क्या बोल रहे हो? सर कॉइल मूव क्यों करेगा इसमें? कॉइल मूव क्यों करेगा मतलब? सर पाइवोटेड टाइप में जो करंट जाता है दोनों कॉइल, टाइप में कॉइल मूव ये करेगा ना बच्चा, एक में मिरर मूव होता है, दूसरे में क्या होगा, स्प्रिंग मूव होता है उसका साथ, यस राइट? एक में बच्चा ये स्पाइरल ऊपर है, समझ रहे हो ना आप? यस सर, स्पाइरल। बच्चे कॉइल है ना ऐसा, तो स्पाइरल ऐसा रहता है लाइक दिस, तो ये घूमता है तो स्पाइरल का सिस्टम भी घूमता है, तो पॉइंटर उसको कनेक्टेड है, यस सर, राइट? यस सर। मतलब कॉइल वर्टिकली है तो आपका
स्पाइरल स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और उसको पॉइंटर है, ये ऊपर नहीं है बच्चा, ऐसा है। यस सर समझा। ओके बच्चे कंप्लीट करो, देन वी विल मूव टू, थोड़ा पार्ट बाकी है कि ये भी लिखना कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एंड उसको थोड़ा रेसिस्टेंस का देखेंगे। एंड एग्जाम में बच्चे ये डायग्राम का जरूरत नहीं है, बट वो आपको एक्चुअली ये डायग्राम है, बट आपको वही बनाना है एग्जाम में, बिकॉज दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, राइट। सर स्ट्रॉन्ग लैमिनेटेड मतलब? बच्चा समझ, हेलो, लैमिनेटेड का मतलब ये है थिक शीट्स को ज्वाइन करके बड़ा बनाते हैं हम लोग, समझ में आया? सर रिपीट। अब बच्चा आपका नोटबुक देखा है आपने, यस उसमें डोंट यू थिंक बहुत सारा 3 पेजेस है, 3? यस अब इस सबको मिला के एक बड़ा बनाएगा कि नहीं वो? यस वैसे ही हॉट शू मैग्नेट बनता है मेटल शीट से, ऑफ कोर्स आयरन शीट से। यस सर समझा। हाँ। सो इनफैक्ट में ये जो ओल्ड सिलेबस में जो हम लोग इधर लिखा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो एक्चुअली वो डेरिवेशन था, तो ये सिलेबस में उसको निकाल दिया है, ओल्ड टू लास्ट ईयर सिलेबस में था वो।
सर उसमें थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन है बच्चा, डिफ्लेक्शन। यस सर। सर पाइवोटेड टाइप में 2 पॉइंटर रहेंगे। एक ही तो है बच्चा, ऊपर नीचे पाइवट से एक ही दो रहेगा, बट पॉइंटर तो एक ही। दो पाइवट्स लगाना नहीं पड़ेगा ना, तो एक ही लगाए तो अनबैलेंस हो जाएगा। यस। यस सर। सर वो पाइवोटेड में स्प्रिंग का नाम क्या था? हेलिकल स्प्रिंग। उसको बच्चा बहुत सारा नाम है, हेलिकल स्प्रिंग है। देन वो जो मटेरियल है ना स्प्रिंग का, वो फॉस्फर ब्रोंज फाइबर वायर से बनता है। फॉस्फर ब्रोंज फाइबर वायर मतलब वो एक अलॉय से बनता है। मतलब वो स्प्रिंग का मतलब उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर का साथ चेंज नहीं होना चाहिए, रस्टिंग नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग अलॉय से बनता है। मतलब आप हेलिकल स्प्रिंग याद रखना तो बहुत काफी है। अदरवाइज उसको बनाते हम लोग फॉस्फर ब्रोंज फाइबर वायर। यस सर। अच्छा फिनिश। नो। नो सर।
डन सर। ओके, सबको ओके बच्चों? यस सर। फाइन। सो चलो, एक पार्ट है, ऑब्वियसली हम लोग इधर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मेजर कर सकते हैं। तो बट जब भी हम लोग एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोग। सो विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन, with with proper modification, the galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. So obviously ammeter high current measure करता है, voltmeter potential difference measure करता है, right? So how we are going to make it, वो discuss करेंगे हम लोग. And the galvanometer as resistance up to 100 ohm, around 100 ओम रहता है। मतलब कुछ जगह तो 150 भी है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन केस कॉलेज इन केस शुरू हुआ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, देयर आर सम गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 150 भी है, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिलो 100 होता है। बट इज इट क्लियर? Yeah, I would say they have got average या moderate resistance. That is better. Resistance 0 ohm to 100 ohm. And it can, and current range, and it can measure current up to 1 milliamp. 1 milliamp. But is it clear? यस सर। मतलब 1 milliampere उसका क्या बचा? करंट कैपेसिटी, राइट? सो द मैक्सिमम करंट, मतलब सपोज डिफ्लेक्शन है 0 है, तो ये आईजी होगा, राइट? तो मतलब आईजी पास किया तो फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो उससे ज्यादा नहीं मेजर करता है, तो आईजी का वैल्यू 1 मिलियम्पेयर होगा, राइट? इधर तक समझा बच्चा? यस। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग सिंबल का बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको एक तो जी एनसर्कल्ड लिखो चलेगा, नहीं तो रेसिस्टेंस बनाओ ऐसा, देन एनसर्कल करके जी लिखो वो भी चलेगा, या कॉइल बनाओ एनसर्कल करो जी लिखो वो भी चलेगा, नहीं तो डिफ्लेक्शन दिखाओ और ऊपर जी लिखो वो भी चलेगा, राइट? सो ये सब गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। सो इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। इज इट ओके बच्चा? तो जी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होगा, यस सर। ठीक है? तो यस। एक इतना पार्ट कंप्लीट करो, देन विल मूव टुवर्ड्स द कन्वर्शन, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एज वेल एज गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. So you can write all these things.
सर नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो बच्चा? लिख के नहीं हुआ सर। हाँ हाँ हाँ, लिख लो। ये पार्ट रब नहीं कर रहा हूँ, आई एम रबिंग दैट अदर पार्ट। हो गया सर। ओके बच्चा, सबको हो गया? यस सर। यस Fine. अभी गैलोनोमीटर को चलो हम लोग बोल तो दिया कि कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर। तो बिफोर कन्वर्टिंग गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, ऑब्वियसली वी शुड नो व्हाट इज एमीटर, राइट? तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि एमीटर क्या है या कैसा होता है, क्या है उसका रेसिस्टेंस होता है। सो नेक्स्ट इट इज एमीटर। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था एमीटर का बारे में, ए डिवाइस which can measure high current or current in ampere. Current in amperes. Amperes is called ammeter. Ammeter मतलब एक तो हाई करंट मेजर करेगा, नहीं तो करंट एम्पियर्स में मेजर करेगा, मिली एम्पियर में नहीं, एम्पियर्स में मेजर करेगा। तो ऑब्वियसली उसको हम लोग एमीटर बोलेंगे। सर एमीटर सीरीज में क्यों कनेक्ट किए जाते हैं? वो सब डिस्कस करेंगे बच्चा अभी, ठीक है? सो Yes. मतलब अभी फिलहाल हम लोग को इतना पता रहना चाहिए कि एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग हाई करंट मेजर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है कि इसको कैसा कनेक्ट करना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे, एक सेल है विद ईएमएफ ई है, मान लो इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसका अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया दो रेसिस्टेंस इन सीरीज, राइट? तो ये R1 है, ये R2 है, एंड ऑब्वियसली करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अभी किसी को भी मैंने पूछा सर इसमें करंट कितना है, तो ऑब्वियसली वो बताएंगे रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो करंट E अपॉन R1 प्लस R2 होगा। बच्चा आप भी बताएंगे? यस यस अभी मेरे को बता, अभी I को आपको मेजर करना है, तो विल यू कनेक्ट एमीटर इन पैरेलल या सीरीज? सीरीज। राइट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट स्प्लिट होगा। करंट स्प्लिट होता है। स्प्लिट होगा। यस तो इधर मैंने एमीटर को कनेक्ट किया तो स्टोरी अलग हो गया ना बच्चा, I1 और I2 में स्प्लिट होगा और तुम Yes. मेजर करेगा I2, राइट? यस तो पॉइंट नंबर 1, एमीटर चलो मैं इधर कनेक्ट करता हूं। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये पॉइंट नंबर 1 है, समझ में आया? Yes. यस यस तो ammeter is always connected in series with the circuit। बोलो बच्चा बोलो। सर एमीटर इधर कनेक्ट किया तो टोटल करंट मेजर नहीं कर पाएगा? क्या कैसा कनेक्ट किया तो? सर इस तरफ जो आपने कनेक्ट किया ना, उधर टोटल करंट मिल जाएगा? इस तरह मतलब इधर कनेक्ट करना मतलब? यस सर। बच्चा देखो बेसिक्स क्या बोलते हैं मालूम है, जब करंट फ्लो होगा ना सर्किट में, ब्रांचिंग नहीं है तो करंट इधर भी आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है। तो मेरे को बताओ एमीटर इधर कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, इट विल गिव यू द वैल्यू आई ओनली। यस सर। बराबर है ना? करंट तो सब जगह सेम है बच्चा। ब्रांचिंग इन द सेंस सपोज इधर एक वायर है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो आई इधर I1, इधर I2, इधर I3, तो ऑब्वियसली इधर I मिलेगा, इधर I1 मिलेगा, इधर I2 मिलेगा, इधर I3, सो देयर इज नो ब्रांचिंग देयर। बच्चा समझ में आया ना लॉजिक? यस यस समझा। फाइन। सो एनीवे, सो आप एमीटर को इधर कनेक्ट करो या इधर कनेक्ट करो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज एवरीवेयर करंट इज I। So ammeter is always connected in series with the circuit. This is point number 1.
ठीक है, अभी मेरे को बताओ बच्चा, चलो मैंने कनेक्ट तो कर दिया सीरीज में, डोंट थिंक एमीटर भी एक कॉइल से बनता है, तो हमने पढ़ा था कि एमीटर गैलोनोमीटर से बनता है, तो गैलोनोमीटर के अंदर क्या होता है बच्चा, कॉइल होता है। ऑयल होता तो है। इसका मतलब एमीटर का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, which I will take it as RA, right? Which I will take it as RA, right? यस तो डोंट यू थिंक बच्चा अभी रेसिस्टेंस सर्किट में 1 2 3 बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। बढ़ So गया। बढ़ गया है। since you are connecting it in series, the effective current will become R, effective resistance will become R1 R2 plus प्लस RA। RA। तो अरे इसका मतलब इसका प्रेजेंस का वजह से करंट तो क्या होगा, कम होगा, तो कम विल मेजर होगा। करंट आई कम। डैश, बराबर है ना बच्चा, आई एक्चुअल करंट है, अभी जो मेजर कर रहा है वो करंट क्या है, आई डैश है। आई होप यू गेटिंग। तो और आई डैश को मैं कंपेयर किया, आई हमेशा ज्यादा रहेगा, आई डैश कम रहेगा। यस सर। यस। Yes. दिस इज Yes. एक्चुअल करंट, आई होप यू गेटिंग, एंड दिस इज मेजर्ड करंट। तो आप मेजर कर रहे हो, ये करंट है। तो ऑब्वियसली एमीटर का प्रेजेंस का वजह से, एमीटर का प्रेजेंस का वजह से आपका सर्किट का करंट कम हुआ और आप उसको मेजर कर रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? Yes. अच्छा, राइट। तो मैं बोलूंगा आइडियली, आइडियल सिचुएशन में आपको दोनों करंट सेम चाहिए, दोनों करंट सेम चाहिए। तो बताओ, फॉर आइडियल एमीटर व्हाट शुड बी द रेसिस्टेंस? जीरो। जीरो, अल्टीमेटली जीरो, क्योंकि जीरो है तो डोंट यू थिंक करंट एमीटर की वजह से चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट आई डैश और आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप यू Same. गेटिंग। यस यस। मतलब आइडियली एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चा, जीरो होना चाहिए, जीरो। राइट? तो अभी बताओ, जब मैं Yes. प्रैक्टिकल सिचुएशन का बात करता हूं, कैन यू हैव ए कॉइल विद जीरो रेसिस्टेंस, इज इट पॉसिबल? नो। 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 इसका मतलब आप रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या कर सकते हो बच्चा, मिनिमम कर सकते हो, बट आप जीरो तो कभी नहीं कर सकते हो, राइट? यस। यस। मतलब आई डैश इज इक्वलेंट टू आई हो सकता है, बट नेवर बी इक्वल टू आई नेवर होगा, इक्वल टू यस। राइट? मतलब रिक्वायरमेंट ए है बट ये पॉसिबल है हमारा, राइट? बच्चा समझ में आया? यस। ये है एमीटर है, राइट? तो लिखते वक्त ये लिखना है, कोई पूछा एमीटर क्या है तो लिखना है ए डिवाइस विच कैन मेजर हाई करंट और करंट इन एम्पियर्स इज कॉल्ड एज एमीटर. It is always connected in series with the circuit, and for ideal ammeter the resistance should be zero, and for practical ammeter the resistance will be minimum. Is it okay? यस। यस। ओके बच्चा, लिखो, कंप्लीट करो इसको, देन हम लोग कन्वर्शन देखेंगे।
Done. So I hope it is done. बच्चा आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, ओके, हो गया ना लिख के? yes, Yes. Yes. ठीक, फाइन. Next is conversion of galvanometer into ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter. तो हमको अभी गैलोनोमीटर भी पता है, एमीटर भी पता है, राइट? तो मैं इधर दो असम्पशन लेता हूं. लेट जी जो है रेसिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, एंड आई जी जो है उसका मैक्सिमम करंट, तो आप उसको मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं, नहीं तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोल सकते हैं. डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैलोनोमीटर, क्योंकि फुल स्केल है तो मैक्सिमम ही होगा. तो एक तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट ऑफ गैलोनोमीटर. बच्चा अभी ध्यान से सुनो. तो क्या आपको जब गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इतना तो पता है कि गैलोनोमीटर कम करंट मेजर करता है, बराबर है ना बच्चा? इट विल मेजर स्मॉल करंट एंड एमीटर बड़ा करंट मेजर करता है. तो इसका मतलब आपको इफेक्टिव जो करंट कैपेसिटी है, इफेक्टिव करंट कैपेसिटी बोलो या रेंज बोलो, कैपेसिटी must be increased to desired higher value. जो एमीटर बनाना चाहते हो वो डिजायर्ड वैल्यू जो है उधर तक आपको करंट कैपेसिटी बनाना पड़ेगा. डिजायर्ड हायर कैपेसिटी या हायर वैल्यू. मुझे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू डिजायर्ड हायर वैल्यू, राइट? Yes, sir. Yes. yes sir, Yes. अभी बच्चा गैलोनोमीटर का रेसिस्टेंस मैंने कितना बोला था आपको याद है? 100 तक रहता है बोला था मैंने. 0 to Yes. 100, 0 to 100. एमीटर का रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा? 0. लो चाहिए. 0, yes, हाँ राइट. तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड, minimum, मस्ट बी डिक्रीज्ड. जितना पॉसिबल है उतना डिक्रीज करना है, राइट? अभी बच्चा अभी एमीटर हाई करंट मेजर करता है, सो देयर इज ऑलवेज ए चांस हाई करंट विल डैमेज द इंस्ट्रूमेंट, राइट? कॉइल जल सकता है या ज्यादा डिफ्लेक्शन की वजह से जो नीचे का हेलिकल स्प्रिंग है वो ब्रेक हो सकता है. Yes, सो sir. हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गैलोनोमीटर को, राइट? सो वी Yes. हैव टू प्रोटेक्ट द गैलोनोमीटर फ्रॉम द हाई करंट, बराबर है? Yes. yes, So protect the galvanometer from high current. So otherwise we can also write protect the galvanometer from damages caused by the high current.
So it is up to you. So protect the galvanometer from high current, क्योंकि high current will definitely damage the galvanometer. मतलब ये 3 requirement है if you want to convert galvanometer into ammeter. बराबर है बच्चा? Yes. ठीक है, अभी ध्यान दो इधर. So मैंने गैलोनोमीटर को ऐसा रिप्रेजेंट किया. So this is going to be the original system. So इसका रेसिस्टेंस G है एंड ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है IG. बराबर है बच्चा? Yes. तो रेसिस्टेंस G है, सॉरी रेसिस्टेंस G है एंड करंट मेजर करता है IG एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VG ले रहा हूँ, विच इज IG इंटू G होगा. बच्चा राइट? Yes. ठीक है, तो पहला मैं G का ही बात करूंगा. रेसिस्टेंस अभी G है, तो रेसिस्टेंस मेरे को डिक्रीज करना है. क्या करना है बच्चा? डिक्रीज. डिक्रीज. डिक्रीज करना है, तो मेरे को पास 2 ऑप्शन है. एक, मैं और एक रेसिस्टेंस लूं, उसको मैं एक तो पैरेलल में कनेक्ट करूं, नहीं तो उसको सीरीज में कनेक्ट करूं. 2 ऑप्शन है मेरे को. रेसिस्टेंस को चेंज करना है, तो we can take one more resistance. One you can connect it in series, another you can connect it in parallel. So tell me, if you want to decrease the resistance, what we will do? We will Parallel. connect it. Absolutely. ये पास हो गया, ये फेल हो गया. बराबर है? Yes. ठीक है, चलो हमारा 2 ऑप्शन में हम लोग ने पैरेलल सेलेक्ट किया. अभी पैरेलल में और 2 ऑप्शन है. पैरेलल में एक तो ये जो रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो स्मॉल रहेगा, नहीं तो ये जो रेसिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे वो ज्यादा रहेगा. तो बताओ, आपको रेसिस्टेंस आपको कम करना है, तो ये जो R का वैल्यू आप लार्ज रखेंगे या स्मॉल रखेंगे? मोर रखेंगे, राइट? Yes. ठीक है, मान लो इसका रेसिस्टेंस 5 है, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है, इसका रेसिस्ट 5 है, इसका 100 ओम है. तो बताओ इफेक्टिव इसका क्या होगा बच्चा? 5 into 1 upon 5 plus 1, 5 plus 1. which is 5 by 6, 6. which is less than 1 है. यस सर. नेक्स्ट वाले का 5 into 100 upon 5 plus 100. So obviously it is 500 upon 105. तो मतलब इसका वैल्यू लेस देन 5 है. 10 by 3. 3.333. बराबर है बच्चा? लेस देन 5 है. Yes. बच्चा आपको बताओ कौन सा वैल्यू नियर टू 0 जाता है? फर्स्ट वाला. First वाला वाला. ना बच्चा. तो अभी फिर से पूछ रहा हूं, मतलब मैं मानता हूं कि रेसिस्टेंस दोनों में कम होता है, बट किस में ज्यादा कम होता है बच्चा? स्मॉल में है ना? Small में. Yes. Small में. बच्चा पैरेलल में क्या होता है? देखो, रेसिस्टेंस A कनेक्ट किया, B कनेक्ट किया. पैरेलल में इसका इफेक्टिव जो है ना, इसका इफेक्टिव पैरेलल में आपको पहले देखना कि A और B में कौन छोटा है. सपोज B छोटा है, तो इफेक्टिव जो C है वो B से भी कम रहेगा. बच्चा समझ में आता है आपको? बच्चा 5 और 1 में कौन छोटा है बच्चा? 1. 1. तो आपका इफेक्टिव 1 से भी कम है. समझ में आता है? Yes. अब ये 5 और 100 में कौन छोटा है बच्चा? 5. आपका इफेक्टिव 5 से भी कम है. 5 से भी कम है. Yes. A और B में आपका इफेक्टिव, ये देखना है कि A और B में कौन छोटा है? B है. तो इफेक्टिव B से भी कम है, तो कॉमन सेंस है, ऐसे तो कम ही है वो. Yes. बच्चा समझा? Yes. तो बताओ, हमारा पास Yes. पहला ऑप्शन आया सीरीज पैरेलल, हमने सेलेक्ट किया पैरेलल. बाद में फिर से और 2 ऑप्शन आया, हाई रेसिस्टेंस है कि लो रेसिस्टेंस. आपने सब Low सेलेक्ट किया resistance. लो रेसिस्टेंस. बराबर है बच्चा? Yes. ठीक है, चलो रेसिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग एक लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वी विल कनेक्ट ए वेरी लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल. तो पैरेलल में करते हैं, तो पैरेलल को हम लोग कुछ कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसको शंटेड बोलते हैं. ए रेसिस्टेंस इज शंटेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. मतलब शंटिंग मतलब पैरेलल सेम है. इसके लिए ये जो रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं इसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं. मतलब हियर एस रेफर्स टू शंट रेसिस्टेंस. एंड क्यों शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं बच्चा? शंटिंग मतलब होता है पैरेलल. इसके लिए एस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट, ये रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसके लिए इसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं. इज इट ओके? Yes. Yes. ठीक है, अभी हम लोग बच्चा बात करेंगे रेसिस्टेंस.
तो मैंने मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है ना बच्चा जी डैश है। क्या है बच्चा? जी डैश। समझ में आता है आपको बच्चा? समझ में आता है? जी डैश। जी डैश किस? बच्चा जी डैश मतलब मैंने इफेक्टिव ले लिया जी डैश। ओके सर, समझा। Yes. तो अभी बताओ जी डैश का वैल्यू क्या होगा? डोंट यू थिंक इट इज जीएस GS अपॉन जी upon प्लस G एस? plus S. G plus G H. plus. एंड ऑब्वियसली ये जी से कम होगा, मानते हो? यस Yes. सर। Yes. Yes. तो मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। Come. तो ये पास हो गया, बराबर है ना? दिस इज क्लियर। Yes. हाँ ना बच्चा, सिंपल है ना। आपको रेसिस्टेंस कम करना था तो इधर रेसिस्टेंस जी है, इधर रेसिस्टेंस जी डैश है, और जी डैश जी से कम है तो रेसिस्टेंस कम हुआ है। Yes. Yes sir. बच्चा इधर तक समझा? Yes. 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 ओके, तो इधर करंट आईजी है, तो मैं मान लेता हूं कि इधर रेसिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट आएगा, ऑब्वियसली करंट आएगा आई। तो आई में से इधर जाएगा आईजी, क्योंकि इधर आईजी जा सकता है, और नीचे जाएगा आई माइनस आईजी। यू गेटिंग मी? Yes. 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 मतलब अभी करंट जो मेजर हो रहा है वो आई, एक ही आईजी है बच्चा, आई है ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट जो आ रहा है इधर वो तो आई है। आई होप यू गेटिंग। यस। Yes. Yes. मतलब बच्चा वोल्टेज, चलो इधर आई करंट है, बराबर है ना? Yes. Yes. तो बच्चा इधर वोल्टेज वीजी है, तो इधर भी वोल्टेज वीजी है ना, वोल्टेज अक्रॉस द गैलोमीटर तो सेम है। Yes. Yes. जस्ट अ सेकंड, चलो कलर चेंज करता हूं। सो दिस वीजी विल बी आईजी इनटू जी, ठीक है। अभी इधर वोल्टेज जो है ना बच्चा, इधर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप शंटिंग करने के बाद भी ऊपर तो करंट तो उतना ही जाता है ना। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज वी आई जी। इधर भी गैलोनोमीटर में जो करंट है वो आई जी है, रेसिस्टेंस जी है। मतलब इन शॉर्ट मैं इधर ही लिखता हूँ बच्चा, वी कांस्टेंट है। मानते हो आप? पैरेलल में कनेक्ट किया तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सर नहीं समझा सर। सर वो सेकंड वाला नहीं समझा। बच्चे देखो इधर करंट गैलोनोमीटर में कितना जा रहा है बच्चा? आईजी जा रहा है ना। IG जा रहा है। Yes. तो ऊपर वोल्टेज वीजी है तो नीचे भी वोल्टेज वीजी है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। Yes. Yes. बच्चे इधर वोल्टेज क्या है? वीजी है, तो इधर भी VG. वोल्टेज वीजी है। देयर इज नो डिफरेंस इन द वोल्टेज। आई होप यू गेटिंग। वोल्टेज इज Yes. कांस्टेंट। Yes. बच्चा Yes. समझा? यस सर। Yes. बच्चा हाँ, तो वी कांस्टेंट है तो मैं वी इज इक्वल टू, बच्चा आई आर लिख सकता हूँ ना। Yes. तो वी कांस्टेंट Yes. है, वी का वैल्यू आई आर है, तो आई और आर क्या है बच्चा? डोंट यू थिंक आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? Yes. Yes. वी कांस्टेंट है तो आई Yes. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी R, एकदम yes. सोच के बताना, इधर आर बढ़ गया कि कम हुआ है? कम हुआ है। Come. तो करंट क्या होगा करंट बच्चा? बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो बढ़ेगा। आई इज मोर देन आई जी, खत्म। आई इज मोर देन आई जी। डोंट यू थिंक फर्स्ट केस सेटिस्फाई हुआ? देखो पढ़ो फर्स्ट केस। Yes sir. बच्चा बराबर है? Yes. Yes. Sir. Yes. Yes. अभी लास्ट पॉइंट जो है बच्चा, मेरे को बताओ, आई आईजी से ज्यादा है, बराबर है ना? Yes. Yes. अभी जब करंट इधर आएगा, करंट स्प्लिट हुआ, तो मेरे को ये बताओ जी और एस में किसका वैल्यू कम है बच्चा? जी और एस में? G का। ए Yes. जी और एस का? Yes. एस का होगा सर। Yes. बच्चा का. Yes. का. शंट रेसिस्टेंस इज द लो रेसिस्टेंस, याद रखो, याद रखो। एस का होगा सर। Yes तो sir. S का मैं होगा। फिर से पूछ रहा हूँ, जी और एस के में किसका रेसिस्टेंस कम है? S का। S का. तो बताओ ज्यादा करंट गैलोनोमीटर में जाएगा या शंट में जाएगा? शंट में जाएगा। शंट शंट में में जाएगा। जाएगा। मतलब जितना भी ज्यादा करंट आएगा वो नीचे से पास होगा। डोंट थिंक तुम्हारा गैलोनोमीटर प्रोटेक्टेड है? यस सर। Yes. 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 मतलब Yes. बेसिकली तुम्हारा शंट क्या करेगा बच्चा? करंट, ज्यादा करंट को बाईपास करेगा, बाईपास। तो इसका मतलब तुम्हारा गैलोनोमीटर प्रोटेक्टेड है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सर वो एक्चुअल करंट कैसे मेजर करेगा? वो करेंगे हम लोग बच्चा, वो बताऊंगा मैं कैसा करना है। बट अभी ये समझ में आया लॉजिकली आपको? यस सर। Yes. Yes sir. क्योंकि मैंने जब लिखा था, क्या वो लिखा था मैंने बच्चा? विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन लिखा था मैंने, प्रॉपर मॉडिफिकेशन।
सो शंट कनेक्ट करना नंबर 1 मॉडिफिकेशन है। और एक मॉडिफिकेशन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? यस सर। बच्चा Yes, मेरे sir. को बताओ तो इधर कितना तक प्रॉब्लम था, बताओ मेरे को कितना प्रॉब्लम था? 3। सॉल्यूशन एक ही 3. है, सॉल्यूशन एक ही है। यू हैव टू कनेक्ट लो रेसिस्टेंस इन व्हाट? पैरेलल। आई होप यू गेटिंग, यस सर। Yes. Yes. राइट? सो रेसिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ गया, एंड ऑफ कोर्स मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू शंट, सो द गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्टेड। समझाओ ना सर, वीजी आईजी वाला। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर वो फिर से समझाओ ना, वीजी और सर वो आईजी। आई इज ग्रेटर देन आईजी है, तो गैल्वेनोमीटर से आईजी से ज्यादा करंट पास होगा। नहीं 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 नहीं, जो करंट आता है वो ज्यादा रहेगा। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो तो दोनों में सेम है। बच्चा सर तो समझा? मेजर कैसा करेगा? हाँ बच्चा, उसको मतलब मैंने क्या बोला आपको, मॉडिफिकेशन और बाकी है ना, तो एक तो मॉडिफिकेशन है, राइट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आई आता है 6 मिली एम्पियर और गैल्वेनोमीटर में आता है 3 मिली एम्पियर। मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ना, 3 मिली एम्पियर जब भी करंट आता है, मैं स्केल में 3 का बदले में 6 लिख दूंगा, तो इधर 3 का वजह से जो डिफ्लेक्शन में आएगा वो इतना ही आएगा, बट इधर मैं 3 का बदले में क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 लिखा है। यस सर। मतलब तुम ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा, जो करंट आता है उसको कैलिब्रेट करेगा स्केल से। वो आगे पढ़ेंगे बच्चा हम लोग। आपका जो डाउट है ना बच्चा, वो एकदम परफेक्ट है, बट इसका आंसर लास्ट में मिलेगा आपको। इज इट ओके? यस। क्योंकि मैंने स्केल का तो बात ही नहीं किया है। जब आपको स्केल का बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, राइट? यस सर। यस। तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ गया है, सॉरी कम हुआ है, करंट बढ़ गया है, एंड आपका शंट में ज्यादा करंट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं द मैक्सिमम करंट flows through shunt resistance. Therefore the galvanometer is protected. बच्चा कोई पूछा what is the use of protected, what is the use of shunt resistance, तो क्या लिखेंगे बच्चा? तो लिखेंगे कि to protect it will galvan it will increase the current capacity, it will decrease the effective resistance, Effective and it will protect the galvanometer from high current. हाई ये 3 करंट। पॉइंट आ जाएगा। इतना समझ में आया? Yes. yes बाकी सब जो डेरिवेशन, देन गैल्वेनोमीटर कैसा आई को मेजर करता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आई होप अप टू दिस मच इट इज वेरी क्लियर, राइट? Yes. Yes. yes कंप्लीट कर लो बच्चे, इसको कंप्लीट करो, देन वी विल स्टॉप। बच्चा स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो ये पॉइंट्स? यस सर। Yes. फाइन, सो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, देन ये पॉइंट्स लिख लेना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसका डेरिवेशन सब देख लेंगे, एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, राइट? So if it is done, we'll stop the lecture now. We'll continue next time. यस।